لاپرواہ شہری سمندر کے منہ میں جانے لگے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہاکس بے پر 8 افراد ڈوب گئے ہیں، جن میں سے 2 خوش قسمت افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جبکہ 4 کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور 2 کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ ڈوبنے والوں میں ایک ہی علاقے کے 6 دوست بھی شامل ہیں۔ اس کے باوجود شہری سمندر میں جانے سے باز نہیں آ رہے۔ سی ویو پر تاحال بے خوف ہو کر نہانے میں مصروف ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاپرواہ شہری سمندر کے منہ میں جانے لگے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہاکس بے پر 8 افراد ڈوب گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید، آگاہ کیجیے کہ اس حوالے سے۔ بالکل جی، سمندر میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہے اور پابندی ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے شہری اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اس لیے کہ کراچی میں مونسون کا تقریباً پورا مہینہ ہی گزر گیا ہے، موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے، جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور چھٹی کا دن اور سیٹرڈے نائٹ کو جو ہے سمندر کنارے گزارتے، اس لیے کہ سب سے سستی تفریح گاہ سمجھی جاتی ہے سمندر کا کنارہ، تو ہاکس بے ہو یا دیگر مقامات ہو، وہاں پر جو ہے وہ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اور دوستوں یاروں کے ساتھ اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، لیکن سمندر میں نہانے پر پابندی ہے۔ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں شہری اور گہرے پانی میں جاتے ہیں، جس کے بعد حادثہ پیش آیا اور 8 افراد جو ہے وہ سمندر کی نظر ہو گئے، جن میں سے 4 کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے اور 2 کو جو ہے زندہ بچایا گیا تھا، لیکن اب بھی 2 افراد کی لاشوں کی تلاش جاری ہے، آپریشن کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھا جائے تو پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی ہے اور شہریوں کو نہ ہی روکا جا رہا، جبکہ سمندروں کے کنارے جو ہے وہ پاکستان میں وہ تصور ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ لائف گارڈز متعین ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کاغذوں کی حد تک ہوتے ہیں۔ واقعات جب پیش آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر فلاحی تنظیمیں جو کام کرتی ہیں وہ آ کر اپنا سر انجام دیتی ہیں، آپریشن کو اور لاشوں کو نکالتی ہیں، لیکن اس سے پہلے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی اور دفعہ 144 ہونے کے باوجود جو اس وقت ہم سی ویو پر موجود ہے، کیمرے کی آنکھ سے ہم نے دیکھا کہ پورا سی ویو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کو سمندر کے کنارے امڑ آیا اور گہرے پانی کے اندر بچوں کے ساتھ جو ہے اٹکیلیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شہری، لیکن کوئی بھی جو ہے اس بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ موسم خراب ہے، موسم خراب ہونے کے باعث جو ہے الرٹ جاری ہے، جبکہ گہرے سمندر میں جانے سے کشتیوں کو بھی روک دیا گیا ہے، الرٹ جاری کیا گیا، فشنگ کرنے والے جتنے بھی ماہی گیر ہیں ان کو تمام کو جو ہے وہ گہرے سمندر میں جانے سے انہیں روکا گیا، اس پر الرٹ جاری کیا گیا، لیکن اس کے برعکس شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور گہرے پانی میں سمندر میں جایا جا رہا ہے۔ ہاکس بے کا مقام ہو، سینٹ اسپٹ ہو، بیچز ہو، سی ویو ہو، 2 دریا ہو، تمام مقامات پر یہ دیکھنے میں آیا کہ ان مقامات پر نظر انداز کیا گیا حکومت کی جانب سے جو جاری کیے گئے تھے SOPs، لیکن اس کے برعکس حکومت اور انتظامیہ بھی موجود دکھائی نہیں دیتی گراؤنڈ پر، نہ ہی پولیس یہاں پر جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے کہ شہریوں کو جو ہے وہ اس امر سے روکا جائے کہ وہ گہرے پانی میں جائیں، لیکن یہاں پر شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ٹریفک کی روانی کا پرابلم دیکھنے میں آئی ہے سی ویو کے اوپر اور اتنی بڑی تعداد میں شہری یہاں پہنچے، لیکن ان کو روکنے کے لیے، اس ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے نہ ہی ٹریفک پولیس یہاں پر موجود ہے، نہ ہی آپریشنل پولیس ہے اور نہ ہی انتظامیہ کا عملہ یہاں پر موجود ہے کہ شہریوں کو روکے۔ واقعہ جو ہے وہ مزید کو اس طرح کے واقعات رونما اس سے پہلے جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایکشن لے انتظامیہ اور ان کو روکے لوگوں کو، تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جائے۔ سی ویو ضرور آئے، موسم سے ضرور لطف اندوز ہو، لیکن گہرے پانی سے بچیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ جی اچھا جاوید، یہ بھی بتائیے گا کہ جو 4 کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور ابھی تک 2 کی تلاش ابھی بھی جاری ہے، تو اس پر کیا ابھی آپ کو تفصیلات ملی ہیں کہ کب تک ان کو ڈھونڈ لیا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ گزشتہ شب کا واقعہ ہے اور سمندر گہرا اور سمندر میں طغیانی ہونے کے باعث لیے کہ پورے ملک میں ایک تو بارشیں جاری ہیں، پانی جو ہے وہ سمندر کی جانب آ رہا ہے، برساتی ریلے سمندر کی جانب جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر ہے وہ بھی، اس میں بھی جو ہے وہ طغیانی دیکھنے میں آئی ہے، تو انتظامیہ کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن جو حادثہ پیش آیا اس میں 4 کی لاشوں کو جو ہے وہ ابتدائی طور پر ہی جو ہے وہ نکال لیا گیا تھا اور 2 لوگوں کو جو ہے وہ اپنی وجہ کے تحت نکالا گیا تھا۔ اب 2 کی لاشوں کے لیے آپریشن جاری ہے، جب تک چاندنا تھا آپریشن جاری تھا، اندھیرا ہونے تک جو اسی طرح آپریشن جاری لگا۔ انتظامیہ کہنا ہے کہ جلد جو ہے وہ ان 2 افراد کی لاشوں کو تلاش جو کی جا رہی ہے ان کو ممکن بنا لیا جائے گا۔ جی اچھا جاوید، یہ بھی بتائیے گا کہ 4 جو ڈوبے ہیں ان کا تعلق کون سے علاقے سے ہے؟ جاوید ہمیں بتائیے گا جو 4 لوگ ڈوبے ہیں ان کا تعلق کون سے علاقے سے بتایا جا رہا ہے؟
बिल्कुल जी, कराची के ही मुकामी है और कराची के शहरी जो है वो पूरे तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से और ऐसे मौसम के अंदर जो है वो शहर से बाहर जो मुकीम यानी कि हैदराबाद और करीब जो शहर आबाद हैं वो भी समंदर और कराची की सैर व तफरी के लिए पहुंचते हैं। तो इन चारों अफराद का ताल्लुक जो है वो कराची से ही था। इन चारों की लाशों को जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया और मॉर्चरी में रखा गया है और जो लोग बच गए थे उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया था ताकि उनकी हालत खैर थी, उन्हें भी जो दोनों की हालत जो स्टेबल है, लेकिन जो ऑपरेशन जारी है वो मुमकिन तौर पे उन दोनों का ताल्लुक भी जो है वो आपस में ही था। इन लोगों का जो लोग एक साथ इकट्ठे होकर दोस्तों की साथ जो है ये तफरी के लिए पहुंचते हैं और यही तफरी जो है ये हादसे का बाइस बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पीपल्स बस सर्विस के रूट से मुतालिक इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और दीगर हुकाम ने शिरकत की है। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने पीपल्स बस सर्विस के सातों रूट्स पर तमाम सड़कों का मरम्मती काम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा रूट नंबर 1 के जो मरम्मत और मेंटेनेंस के काम हैं इनको फौरी शुरू किया जाए। रूट नंबर 2 नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल तक है। इस रूट पर शफीक मोड़, सोहराब गोड़, शाह फैसल ब्रिज के इलाकों में असफॉल्ट के काम की ज़रूरत है। गुलशन शाह फैसल में फ़र्श के काम की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने रूट नंबर 2 के तमाम काम 1.5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची में शदीद बारिश और सीवरेज के ख़राब निज़ाम के बायस सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल अबतर हो गई है। गंदगी और कीचड़ के बायस ताजरों समेत ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना है। ये मनाज़िर हैं सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी ब्लॉक के, जहां हर तरफ बदबू, गंदगी और कीचड़ के डेरे हैं। सफाई सुथराई के नाकिस निज़ाम के सबब ताजिरों, माशाखोरों और आढ़तियों को मुश्किलात का सामना है। ताजिरों का कहना है कि बारिश के बाद यहाँ हर तरफ गंदगी की ढेर और कीचड़ है। ये पुल गिरने की वजह से महंगा हो गया। अभी जो दूर से आते हैं मगर 70 रुपए किलो इधर बिक रहे, पहला 100, 150 का 300 तक पहुँचा हुआ था। ये बारिश और कीचड़ की वजह से और उधर पुल गिरने की वजह से अभी तो सस्ता हुआ। ये हाल पड़ा हुआ है, अभी स्लिप हो गए, गाड़ी स्लिप हो गई, यहाँ चोट लग गई, यहाँ देखिए यहाँ चोट लग गई, यहाँ भिंडी का पूरा वो कार्टन फेंक दिया। इतनी गंदगी, इतनी बदबू, इतनी स्मेल है। मंडी में कीचड़ और गंदगी के सबब बेशतर सब्जियां भी गल सड़ गईं, जिससे ताजिरों को नुकसान हुआ। ताजिरों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मंडी में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर किया जाए ताकि कारोबार में मुश्किलात ना हो। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। हालिया मानसून स्पेल और सीवरेज का नाकारा निज़ाम कराची की छोटी बड़ी सड़कों और गली मोहल्लों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर गया। डॉलर की बढ़ती कीमत के बायस सैकड़ों सड़कों की बहाली का तखमीना 50 अरब रुपए लगाया जा रहा है। कहीं बारिश का पानी तो कहीं काले पानी से अचानक बैठने वाली सड़कों के बड़े बड़े शिगाफ। कराची के शहरियों को ये मनाजिर बारिश के बाद हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। कराची के सड़कों को, गलियों का बहुत बुरा हाल है भाई। यहाँ पे कोई भी पैसे लगाने वाले नहीं है। कराची कमा के दे रहे सब सुबह से ज़्यादा, फिर भी कराची यही बर्बाद है। हर रोडों में पानी जमा हुआ है, खड्डे। केएमसी के अमले तो गए बे, पता ही नहीं कहाँ है केएमसी वाले। औरंगी टाउन से आ रहा हूँ, सिविल अस्पताल जाना, रास्ते में रुकावट है, बहुत ज़बरदस्त पानी है। आप यकीन करें भी आने जाने में इतनी दिक्कत होती है हमको तो गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि हैरत होती है भी करके आ रहे हैं इंतजामिया। शहर की तामीर और मरम्मत के लिए 50 अरब रुपए दरकार हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये रकम आएगी कहां से। मारूफ मजदूर रहनुमा जुल्फिकार शाह कहते हैं कराची के लिए ऐलान करदा पैकेज की रकम दी जाए। पहले ही 1.5 अरब रुपए का जो है कर्ज लेकर जो केएमसी ने शाहराहें बनाई थी, बड़ी मुश्किल से मुर्तज़ा वाब साहब ने कोशिश करके वो सब इसमें बह के चली गई और 5 करोड़ रुपए हमें उसके लिए अदा करना पड़ रहा है केएमसी के मुलाजमीन को अपनी तनख्वाह के लिए। अब मामलात यहाँ पर ये हैं कि अगर इसको आफतज़दा कराची को करार नहीं दिया जाता और साबका हुकूमत का जो 110 अरब का पैकेज है, अगर उसको जो दोबारा री नोटिफाई किया जाए या उसको दोबारा जारी किया जाए तो मेरा ख्याल से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील भी हो सकता है। कराची की 106 बड़ी सड़कें बल्दिया उज़्मा कराची, जबकि 550 से ज़ायद इंटरनल और लिंक रोड्स ज़िले बल्दियात के हैं। ये बल्दियाती इदारे पहले ही खसारे में हैं, जिनसे सड़कों की तामीर और मरम्मत की तवक्का रखना दुरुस्त नहीं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब कुछ बात करें तो लोड शेडिंग की। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग ने सर उठा लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। पाकिस्तान चौक के रहायशी के इलेक्ट्रिक पर फट पड़े। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की उजारादारी ख़त्म की जाए।
शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग जिन बेकाबू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पाकिस्तान चौक के मकीन के इलेक्ट्रिक पर फट पड़े। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुका है। शहर में हुकूमत बिजली के निजाम के लिए किसी और कंपनियों को लाए। बिलों में तो इतने टैक्स लगा दिए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि लाइट पहले जो है 1 घंटा जाती थी, अभी 2-2, 3-3 घंटे जाती है। डेली रोज़ाना रात को लाइट जा रही है कंटिन्यू। तो कहने का मकसद ये कि इलेक्ट्रिक ने तबाह कर दिया पूरे कराची को, और कराची रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। इनको बोले, इनको लोग तबाह ना कर दें के इलेक्ट्रिक वाले को। तो इसलिए खुदा को मानो कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, या फिर चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ पैक्ट किया जाए, जो 500 रुपये फ़ी घर ले रहे थे, फ़ी शॉप ले रहे थे। मलिर, लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे की बंदिश की जा रही है। गुलशन इकबाल, गुलशान जौहर, नॉर्थ इस्लामाबाद और फेडरल बी एरिया में 3 से 12 घंटे की बंदिश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग और 14 घंटे तक की बंदिश की तरदीद कर दी। कैमरामैन काशिफ खान, कैमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में गैस बहरान थम ना सका। सुई गैस ने जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को सप्लाई मुअत्तल कर दी। फिर सुबह 8 बजे तक गैस की तरसील बंद रहेगी। शहर में गैस का बहरान हल ना हो सका, जिसके बायस जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई है। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद की गई है। गैस की तरसील फिर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुमा सुबह 8 बजे से बंद है। सिंध असम्बली में PTI पार्लिमानी पार्टी के लीडर खुर्रम शेर जमान ने लियारी ओल्ड कमहार वाड़ा का दौरा किया और टेरी होने वाली इमारत का जायज़ा लिया। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला सिंध से बात करूँगा कि मुतासरीन की मदद की जाए। मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है और ये बिल्डिंग तकरीबन पूरी टेढ़ी हो चुकी है और ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिरने वाली है। हुकूमत सिंध की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यहाँ के जो रिहायशी थे उनको ज़ाहिर है कि घर से बाहर निकाल दिए, उनको भी हटा दिए घर से बाहर। जो बराबर में बिल्डिंग है वो घराने को भी खाली कर दिए और जो बिल्डिंग पीछे है उनको भी खाली करा दिए। अंदाज़न को 15 से 20 घर हैं जिनमें से घरों को लोगों को बाहर निकाल दिया है, ख़वातीन को, बच्चों को बाहर निकाल के फेंक दिए। चलें, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि आपने एहतियात के लिए लोगों को बाहर निकाल दिए। मेरा सवाल ये है कि जो बिल्डिंग के मुतासरीन हैं उनका क्या होगा। ये मैं डिमांड करता हूँ कि जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जाए। सबसे पहले उनको रहने के लिए फौरी तौर पे कोई जगह दी जाए जहाँ पे उनका ठिकाना हो। इसी इलाके में आसपास बहुत सारी जगहें जो कि किराए पे लेके उनको दी जाएं, उनको कोई जगह फराहम की जाए। बिल्डिंग को डिमोलिश करें, बिल्डिंग को डिमोलिश करने के बाद आप यहाँ पे नई बिल्डिंग खड़ी करके दें। मैं सिंध असम्बली में भी आज इसकी आवाज़ उठाऊँगा और वहाँ भी गुजारिश करूँगा, वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि मुतासरीन की मदद की जाए। रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सरमायाकारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया है। टैक्सेस की भरमार, सड़कों पर आ गए सरमायाकार। डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से जमीनों और प्रॉपर्टी पर आयद मुख्तलिफ इकसाम के इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एसोसिएशन के सदर जुबैर बेग का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर पर सरमायाकारी न होने और हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्स से मईशत तबाह हो रही है। आज ये पहली कड़ी है, ये यहाँ से आगाज़ किया हम लोगों ने एहतजाज का। ये एहतजाज करने का मकसद जो बजट 2022-23 में इस साल जो गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस नाफिज किए हैं उससे हमारा कारोबार ठप हो गया है। अच्छा, वो टैक्सेस हैं क्या? इतने मज़ाया है कि तसव्वुराती रेंट, वो भी प्लॉट पे। अब मुझे बताएं कि अगर कोई इन्वेस्टर हम उसकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो अब इसका किराया भी देगा क्या? वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा था। दूसरा ये कि जो एडवांस टैक्स हम 1% देते थे, बेजा इजाफा उसमें किया गया, उसको 2% कर दिया गया। इस मौके पर दीगर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क भर के रियल एस्टेट एजेंट से राब्ते में है, हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्द आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। रियल एस्टेट वो सेक्टर है जिसके साथ 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें जब रियल एस्टेट चलता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, मजदूर काम करते हैं, सीमेंट, सरिया, बजरी, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, आपके बाथरूम में आइटम्स इतने सारे लगते हैं, फिटिंग है, फिक्चर हैं, वो सारी चीज़ें चलती हैं। जब आप इसको रोकेंगे वो काम नहीं चलेगा। जब वो काम नहीं चलेगा तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे। रियल एस्टेट एजेंट्स ने डिफेंस फेज 1 कोरंगी पर रोड पर एहतजाज किया और हुकूमत से टैक्सेस में रिलीफ का मुतालबा किया। कैमरामैन आकिब नकवी, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। तहरीक इंसाफ ने तजुर्बा बिजली के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया है। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि ताजरों पर 6000 का सेल्स टैक्स किसी सूरत मंजूर नहीं। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने सेल्स टैक्स को गुंडा टैक्स करार देकर इनकार कर दिया है, जबकि सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया है। तहरीक लब्बैक के वफ्द ने भी ताजरों से मुलाकात में ताउन की यकीन दहानी करा दी है।
बिजली बिलों में 6,000 रुपए के इजाफी सेल्स टैक्स के मामले पर सियासी जमातें ताजरों की हिमायत में सामने आ गईं। तहरीक इंसाफ और टीएलपी के वफूद भरपूर ताउन का यकीन दिलाने के लिए ताजरों के पास पहुंच गए। खुर्रमशेर समान की क़यादत में पीटीआई वफ्द ने कराची की ताजिर बिरादरी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रमशेर समान का कहना था कि ताजिर बिरादरी की लड़ाई भरपूर तरीके से लड़ेंगे। सेल्स टैक्स की मद में ताजरों से 6,000 रुपए का भत्ता किसी सूरत कबूल नहीं। हमारा मुतालबा है कि इस टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, जो कि ताजिर बरादरी से बिजली के बिलों में 6,000 रुपये तक जो है वो वसूल किया जा रहा है। इस बात पे सब मुत्तफ़िक हैं कि ये एक भत्ता है जो कि ताजिरों से वसूल किया जा रहा है। उन दुकानों से भी लिया जा रहा है जो दुकानें बंद हैं, जिनके बिल्स के अंदर जो यूनिट हैं वो 0 यूनिट हैं। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा बोले, हुकूमत का रवैया ना बदला तो वो सिविल नाफरमानी पर मजबूर हो जाएंगे। टैक्स अदा करेंगे लेकिन भत्ता नहीं दे सकते। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम उस जगह आ जाएं जहां हम रोडों पे तो आ चुके हैं, अब हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे तो ये हुकूमत का अपना नुकसान है। हम 14 किस्म के दूसरे टैक्स भरते हैं जो हम बिल्कुल अदा नहीं करेंगे अगर हम पे जोर जबरदस्ती की गई तो। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स बाकी भी हम भरना बंद कर देंगे जो अगर इन्होंने ये वापस टैक्स नहीं लिया और जबरदस्ती की गई। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा कि इजाफी टैक्सेस के मामले पर ताजिरों की बिजली बंद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक अपने अमले को बाज रखे। जो हमारा एहतजाज शुरू हुआ है वो एहतजाज हमारा जारी है जब तक ये बिजली के बिलों का मसला नहीं होता। बिजली के बिल हम नहीं भर रहे। अभी पिछले 3 दिनों से थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही है हमारी मार्केट्स के अंदर, जो कई के अमला आके डिस्कनेक्शन करने की कोशिश की है। कोरंगी ताजिर जाके यहाँ पे शाहिद भट्ट साहब मौजूद हैं, इन्होंने 3 दिन पहले वहाँ पे डिस्कनेक्शन रोका है। आल कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर ने कहा कि इस टैक्स को IPP से निकाला जाए। विफाक और सूबाई असम्बली में बैठे लोग हमारे मसाइल पर बात करें। पूरे मुल्क में जितने भी IPPs हैं उन पर भी मुश्किलात आई हैं कि ताजिर भारी बिलों की वजह से अदम अदायगी से मजबूर हैं कि वो ना कर सकें। लिहाजा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रिक से कि जो लोग बिल अदा नहीं कर सके उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द ने भी रुकन सूबाई असम्बली मुफ्ती कासिम फखरी की सरबराही में ताजिरों से मुलाकात की और सेल्स टैक्स के मामले पर अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन काशिफ खान के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21।